Oh, Very good. No? very good. ये वाला जो मैसूर पाक है उसको कॉफी में ऐसे डिप करो और फिर So this is chicory, which is a root, और इसको घी में रोस्ट करके पाउडर करके it's blended with the coffee. तो बोल, मैं जा रही हूँ लाला लैंड में. बाय बाय. प्राची आज थोड़ी रॉयल फीलिंग नहीं आ रही है. हाँ Do you know why? Yeah, because we are in the city of palaces. A city that's named after a demon. The city with the highest tourist footfall in South India. The city that lends its name to the most delectable food items. We are in Mysore. ये है अम्बा विलास पैलेस, मैसूर का सबसे खूबसूरत मेन पैलेस कह सकते हैं. The city has many palaces actually. And this is exactly why second most visited Tourist city tourist in India. city in India after Agra because of this beautiful palace. और ये महल शाम को एक दुल्हन की तरह सजता है. More than 1 lakh bulbs illuminate this palace. दूर से भी आपको पता चलेगा कि पैलेस कहाँ पर है. We did not talk about the fact that ये palace जो पहले बना था वो wood का था. राइट, लकड़ी का बना था और 1890 में Unfortunately दशहरा के टाइम जल गया जल गया. और फिर ये नए पैलेस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ. But it became bigger and better and more beautiful. Beautifuler, Beautifuler If that's is a wrong word. English. if that's a word. तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? अभी क्या खाना है? अभी इमिजिएटली तो मेरे दिमाग में मैसूर पाक आता है. बट बिफोर मैसूर पाक ना एक चीज़ करते हैं. क्या? सिंस यहाँ पे आई नो दैट द कॉफ़ी कम्स फ्रॉम चिकमंगलूर या और कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी. सो वी आर कॉफ़ी ढूंढते कॉफ़ी खरीदने आ गए हम एट कोडुगु कॉफ़ी. कोडुगु कॉफ़ी इज कॉफ़ी फ्रॉम कूर्ग, राइट? It's from Coorg, yes. It's from Coorg, and we are with Nitin, who Exactly. owns the shop. Since how many years do you It's own been this? 25 years since we started the business. My Right. father started this one, and I'm the second generation who's taking care of the business now. Right. And where is your plantation in coffee? It's in Somarpet district, So Madikeri, part of it's the same district. same district. It's in North okay. Coorg actually. North Coorg. Yeah. Okay. So we actually came to the shop because we could smell the aroma of the Yeah, coffee and we got that's really pulled nice. towards it. Yeah. That's really So your coffee must really be coming straight from the plantation. Exactly, Here. yeah, There that's are no true. stopovers in between. Not exactly, but a lot of different varieties of coffee. But maximum is from our own estate. And we'd like to buy some coffee now. Please, yes. So this is chicory, which is a root, और इसको घी में रोस्ट करके पाउडर करके it's blended with the coffee. With the coffee, and this is from the dandelion family of flowers. Yep. और ये And, स्पेसिफिकली चिकोरी बता रहे हैं comes from गुजरात and Gujarat आंध्र. and Andhra. But you know what? What is the rumor that chicory क्यों use करते थे कॉफी में? क्यों? Because there was a shortage of coffee in the world, and the French and the Germans started Yeah. blending chicory with coffee because there was a shortage, and that accidentally became tasty Yeah. and medicinal. I see. As we all know that Coorg falls in the coffee belt of the world because it's between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो वहाँ का क्लाइमेट जो है supports the growth of Yes, coffee and one of good the coffee. best coffees in the world is in Coorg, and we will buy some fresh Kodugu coffee. सनन जी, गुरु स्वीट मार्ट के बारे में बहुत सुना है, तो आप जल्दी से हमको ये मैसूर पाक के ओरिजिन की कहानी बताएंगे. Yes, sir. और थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए भी दीजिए. what क्या वो भी दे नियरली 90 years सर. हमारा ये ग्रैंडफादर है बसवाना, ये उसका फादर ये काकासुरा मादापा. ये पैलेस में महाराजा का पास कुक है. एक विशेष अतिथि आगमन को मैं स्वीट बना को बोलता है राजा. ये स्वीट बनता है हमारा काकासुरा मादापा. एक
वो स्वीट गेस्ट आ गया ना, वो महाराज खुश होता है। क्या नाम है वो मालूम नहीं है। महाराज बोलता है ये मैसूर प्लेस पाका इज शुगर लिक्विड, मैसूर पाक ऐसा नाम आ गया सर। And he was a generous king, I think, because especially जब मैसूर पाक का जन्म हुआ यहाँ, he loved it so much, he wanted his praja to taste it. Yes. And that's how it reached the masses, and hence it's going to reach us today. The masses. The masses. तो ये है घी वाली, ये है घी एंड शुगर, ये है घी शुगर एंड मिल्क, Right. ये है घी एंड जैगरी, और ये है वनस्पति में। तो दिस इज़ वनस्पति विच इज़ वेजिटेबल फैट, और इसकी वजह से ये थोड़ा ब्रिक की तरह ऐसे कड़क हो जाता है। या और इसको खाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो है अपने आप मेल्ट इन योर माउथ सिचुएशन है, ये मेल्ट इन योर कॉफ़ी सिचुएशन है। तो ये मैं बताता हूँ, मोहित विल डेमो। ये तरीका किसने बताया था मेरे को? मद्रास कैफ़े का ओनर देवदत्त वॉज अ फ्रेंड। वो बोलता है कि ये वाला जो मैसूर पाक है उसको कॉफ़ी में ऐसे डिप करो, और फिर ये खाओ। तो द मैसूर पाक कट्स द एसिडिटी ऑफ द कॉफ़ी, और अगर गले में कुछ ग्रीजी लगता है आपको तो गरम गरम फिल्टर कॉफ़ी। बट दिस इज द ओजी। ये जो है इट्स सपोज टू गिव यू अ ब्रेन फ्रीज, एंड इट्स एक्चुअली वार्म, गरम गरम आया है हमारे पास। तो फ्रोजन मिल्क वाला भी ट्राई करते हैं। आई थिंक ये थोड़ा पेड़ा का टेस्ट होगा। या इट्स अ मैरिज बिटवीन मैसूर पाक एंड मिल्क, बट आई एक्चुअली डू लाइक इट बिकॉज इट्स रियली सॉफ्ट, इट्स लाइक अ फज। फज, या। तो सुबह से हम मैसूर की सारी फेमस चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, और अब वी आर लुकिंग फॉर सम ओजी स्ट्रीट फूड ऑफ मैसूर। यस, मैसूर पाक हो गया, मैसूर में अच्छी वाली कॉफ़ी खरीद ली। अब हम जाते हैं उधर उस तरफ, और मैसूर का, लाइक प्राची सेड, ओजी स्ट्रीट फूड, द ओरिजिनल स्ट्रीट फूड ऑफ मैसूर। लेट्स गो। ये होता है फन रास्ते के बीच में आके खाने का। गरम गरम बोंडा फ्राई हो रहे हैं, बोंडा मतलब भज्जी फ्राई हो रहे हैं, और ये है अनियन बोंडा, ये है कैप्सिकम बोंडा, और ये है एग बोंडा। एग बोंडा थोड़ा थोड़ा स्कॉच केक्स की तरह लग रहा है, बट जिसे हम अंडा पकोड़ा भी कह सकते हैं। अंडा पकोड़ा, एग्जैक्टली। I'm going to start with the capsicum. Wow, so crispy. I don't think you can go wrong with this food, है ना? अनियन है, थोड़ा सा दाल है, बैटर फ्राइड है, क्रिस्पी है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ये मूंग दाल का बैटर है, so it's actually going to be slightly lighter also on your stomach. Oh, Very good, no? very good. Simple, and because the capsicum is raw, it's got a bite. Al dente. Yes, it's partly cooked, partly crisp. Let's bond over a bonda. Okay, this is an interesting way to serve it, huh? They've cut it into half, and then they put some चटनी chutney. डाला है और अनियन प्याज है, और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये कैसा टेस्ट होगा, कैसा? इसलिए मैं ये बाइट नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरा मुंह में डालने वाला हूँ। अगर आपको पानी पूरी खाने का प्रैक्टिस है तो यू कैन डू दिस। Oh, roll. Oh, what a solid idea to put that chutney and onion. And some masala she put. Yeah, like a chaat masala powder. So many ways to make egg, no? है ना? I mean, it's endless. Oh, in fact, this stall or this cart, उसका नाम ही साकम्मा एग बोंडा है। So egg banda is their specialty. स्पेशलिटी। अब मैं मैसूर बोंडा ट्राई करना चाहती हूँ बिकॉज उसका नाम मैसूर बोंडा है, और जो शहर
खाने को अपना नाम देता है वो डेफिनेटली कुछ अमेजिंग होने वाला है. होगा. तो ब्रिंग इट ऑन गाइस. ओके, 3 चीज़ें हैं प्लेट में. दिस इज आलू बोंडा, सेंटर से काट के दिया हुआ है विद चटनी एंड अनियन. मैसूर बोंडा जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं. और ये है मिर्ची भाजी. तो मैसूर बोंडा से शुरू करें. यस प्लीज. देखने में दाल वड़ा का हाँ, भाई बंधु लग रहा है. दाल वड़ा ही है. हाँ. आलू वड़ा, आलू बोंडा, like a small बटाटा वड़ा. So we come from the land of batata vada. कोई पाव दे दो, मुंबई. पाव. मिर्ची की ओर बढ़ने वाली हूँ और इसके बाद मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, तो तुम बात करना. ये हमने गोवा में भी खाया था, कैफे प्रवीण में. तू बोल. मैं जा रही हूँ लाला लैंड में. बाय बाय. मिर्ची तीखी नहीं है लेकिन मिर्ची है. यू कैन टेस्ट दैट इट्स अ चिली. चिली. और सेम इसमें कोरिएंडर चटनी डाला है, प्याज डाला है. मेरे को ये कोरिएंडर चटनी अगर नहीं डालते तो तब भी चलता. दिस इज रियल स्ट्रीट फूड सेटिस्फैक्शन. हाँ, स्ट्रीट फूड अगर खा रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं, तो होना चाहिए थोड़ा तीखा है, थोड़ा मसालेदार है, चटपटा है. चटपटा है. And on that note of lot of fun, please comment, like, subscribe, share, recommend, and like Prachi always says, teach us how to eat new things, different things. और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. क्या है. आज थोड़ी रॉयल फीलिंग नहीं आ रही है? हाँ, लग तो रहा है शाही शाही. है ना? क्यों? Juice. Oh, right. Gold.